اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہمیشہ میری یہ عادت ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد میں اس کا ترجمہ پڑھ کے پوچھتا ہوں کہ کتنا سمجھا، لیکن آج میں قرآن کی تلاوت تو کیا ہوں لیکن آج اس کا ترجمہ پہلے نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ سین ہے جو بتا دینا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نہیں بلکہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لوگ بیہودے سوال انبیاء سے کرتے تھے، یعنی جو انٹلیکچوئل ہے، جو تھوڑے بہت سمجھدار ہیں، تو جو ناسمجھ ہوتے تھے یا جو جس کو کہا جاتا ہے اپنی زبان میں کہ جن کو زیادہ ہی کچھ سمجھتا ہے، وہ ہمیشہ یہ بے تکے سوال ہمیشہ عقل مند اور انبیاء سے کرتے تھے، سمجھدار آدمیوں سے کرتے تھے۔ ان کے بیجا سوالات میں ان کے گناہ بھی شامل تھے۔ اگر ہم ایسا گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیوں سزا نہیں دیتا، اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑتا، اگر ایسا ہی ہے تو اللہ سے کہو کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو انبیاء سے بے تکے سوال کریں، ایسا کیوں، ایسا ہوا تو ایسا کیوں، ایسا ہوا تو ایسا کیوں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ سوال کرتے تھے، مکہ والے جنہوں نے ایمان نہیں لایا اللہ پر۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مائگریٹ ہو کر ہجرت کر کے جب آپ مدینہ میں گئے تو مدینہ میں آپ کو یہودیوں کا سامنا پڑا کہ یہودی آپ کو بیجا سوال کر کے پوچھتے تھے، یعنی ٹٹولتے تھے کہ یہ سچ مچ نبی ہے یا نہیں، حالانکہ ان کے دل تو مانتے تھے کہ یہ سچ مچ نبی ہے، لیکن یہ کہ ہم پبلک کے سامنے اس کو ایسا کوئی سوال کرے جس کا یہ جواب نہ دے، اور جب جواب نہیں دے گا تو ذلت ہو جائے گی نا۔ اگر کسی نے مجھ سے کوئی سوال کیا اور میں جواب نہیں دیا تو کچھ پبلک سوچے گی کہ شاید نہ معلوم ہو، لیکن کچھ اکثر لوگ یہ سوچیں گے ارے اس کو آتا جاتا ہے ہی نہیں۔ تو یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پہلے سے معاملہ چلا آ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے انبیاء سے ایسے سوالات کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ انبیاء کو اٹکا دے ان کے سوالوں میں، چاہے وہ کیسا بھی سوال ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ان کو جانچنے کے لیے کہ کتنے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ امام شافعی جو ہے نا بہت صبر والے ہیں، یعنی ان کے اندر پیشنس بہت ہے۔ تو ایک لڑکے کو شرارت سوجی کہ امام شافعی کو نا آزمانا چاہیے کہ ان کے اندر کتنا پیشنس ہے۔ تو امام شافعی پڑھا کر اپنا کام کر کے کھانا کھا کے جو ہے نا دوپہر میں ان کا محلہ اوپر تھا، وہ سونے جا رہے تھے کہ چلو میں سو جاتا ہوں، قیل اللہ کرتا ہوں، اور اچانک سونے گئے تو اچانک کسی نے دستک دی نیچے۔ امام شافعی ہڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور پھر نیچے آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اور اس نوجوان نے کہا کہ مولانا حضرت میں آپ سے سوال پوچھنے آیا تھا لیکن میں اب بھول گیا کہ میں کیا سوال آپ سے پوچھنے آیا تھا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ اچھا جب یاد آ جائے تب آ جانا۔ پھر امام شافعی اوپر گئے، آرام کرنے لگے تو اچانک اس نے واپس دستک دی۔ پھر امام شافعی آئے، بولے مجھے ابھی آ تو گیا تھا سوال یاد، لیکن جیسی ابھی آپ آئے نا تو میں نے سوال چلے گا میں نے سوال بھول گیا کہ آپ کو کیا سوال کرنا تھا۔ امام شافعی بولے اچھا ٹھیک ہے جب یاد آ جائے تب آ جانا۔ کتنی بار ہوا؟ دوسری بار۔ تیسری بار بھی اس نے ایسے ہی کیا کم بخت میں، اور چوتھی بار امام صاحب نے کہا کہ تیسری بار بھی امام صاحب نے کہا کہ اچھا جب یاد آ جائے تب۔ پیشنس دیکھو ان کا۔ امام شافعی وہ ہیں جو 4 اسکول آف تھاٹ میں، وعلیکم السلام، آئیے، تیسرے سب سے بڑے سمجھے جاتے ہیں۔
इमाम शाफी वो हस्ती है जो स्कूल ऑफ थॉट में तीसरे नंबर पे आते हैं। स्कूल ऑफ थॉट में सबसे पहले जो आते हैं वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, और दूसरे आते इमाम मालिक, तीसरे आते इमाम शाफी, चौथे आते इमाम अहमद। यानी अगर दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई आलिम है सहाबा और सहाबा के बाद, तो ये चार समझे जाते हैं। और सोचो इमाम शाफी उस लेवल के हैं। तो इमाम शाफी ने तीसरी बार कहा कि देखो जब याद आ जाए तब आ जाना। फिर वो बंदा जो है चौथी बार दस्तक दिया, इमाम शाफी आए, और उस इमाम शाफी से उसने क्या सवाल किया पता है? उसने सवाल ये किया कि जो लेटरिंग है, लेटरिंग जो हम गंदगी करते हैं, पाखाना जो करते हैं, उसका टेस्ट क्या कैसा होता है? अगर हमसे कोई ये सवाल करे तो बताओ खून खोलेगा क्या नहीं खोलेगा? लेकिन वो इतना बड़ा इमाम, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दिया कि बच्चा मीठा होता है। अब सामने वाला बोलेगा तुम चके थे क्या? तो वो सामने वाला हंस दिया, बोला ऐसा कैसे, आप कैसे बोल रहे हो, क्या दलील है आपके पास? तो कहा अब ये दलील सुनो, उस इतने बड़े इमाम की होना तो चाहिए खून खौल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शांति से एकदम पीसफुल माइंड से उन्होंने दलील दी कि मक्खी जो होती है ना, मक्खी तीखे पे और कड़वे पे कभी नहीं बैठती। मक्खी किस पर बैठती है? अल्लाह अकबर। मक्खी किस पर बैठती है? मीठे। और वो उस वक्त उसको ये बात समझ में आई कि वाकई ये छोटा मोटा नहीं है। हाँ, उन्होंने फौरन माफी मांगी कि हजरत मुझे माफ कर देना, मैंने ये सुना था कि आपके पास पेशेंस, सबर बहुत है, वो सबर को देखने ही मैं आपके पास आया था, और वाकई मैंने देख लिया कि इतनी दोपहर कड़ी धूप में आप आराम कर रहे थे। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि कितने बार आए आप मेरे पास, और मेरी क्या औकात और आप किस हैसियत के थे? तो जमाना हर आलिम को और हर अंबिया को परखता है। जमाना हर अंबिया को परखता है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने अपनी किताब में एक बात लिखी, पैगंबर इनकलाब, उनकी किताब है पैगंबर इनकलाब। नौजवानों को, वालेकुम सलाम, नौजवानों को वो किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन ये है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब थोड़ा क्लैश हो गए थे। होता है कभी कभार, इंसान सीधा चलते चलते थोड़ा टर्न ले लेता है, वैसा हुआ उनका। तो माइंड में कभी आप मौलाना वहीदुद्दीन खान को जो है ना नेशनल इंडियन अवार्ड भी मिला है, भारत पुरस्कार या भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। वो बंदे ने 90 ईयर्स अबव जिंदगी गुजार कर चले गए, और हमको वो शख्सियत मालूम भी नहीं। कभी नेट में जाकर सर्च करना मौलाना वहीदुद्दीन खान। लेकिन ये कि थोड़ा, लेकिन उनकी एक किताब है पैगंबर इनकलाब, उन्होंने उस किताब में लिखा कि सबसे इज्जत वाला और सबसे मोहतरम, सबसे ज्यादा इंसान में पाकीज़ा अगर कोई हस्ती है तो किसकी हस्ती है? अंबिया की, प्रोफेट्स की हस्ती। लेकिन हिस्ट्री ने सबसे ज्यादा जिन पर जुल्म किया है वो किस पर किया है? अंबिया पर। और जुल्म भी ये हुआ कि उनकी तारीख को महफूज नहीं रखा गया। आपको आर्यंस की हिस्ट्री मिलेगी, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री मिलेगी, आपको उससे पहले की हिस्ट्री मिलेगी, यहाँ तक कि इंसान हिस्ट्री तलाश करते करते इंसान को बंदर बनाने की भी उसने हिस्ट्री दे दिया विथ नो एविडेंस। तो यहाँ पर अंबिया की हिस्ट्री इन लोगों ने महफूज नहीं रखी सिवाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंबिया के साथ पहले से जुल्म होता आ रहा है। और उसके बाद अंबिया के वारिसीन, अंबिया के वारिसीन कौन है? अंबिया के वारिसीन उलमा है। अंबिया के वारिसीन हर कोई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये इनका आपका बेटा है ना, ये क्या है? बहन का लड़का है, ये इनका बेटा नहीं है, फौरन बोल दिए मेरा नहीं है। क्यों? नस्ल साबित नहीं। नस्ल साबित है क्या? नहीं। मैं इनको जबरदस्ती इनका बेटा बनाऊं तो इनको भी गुस्सा आएगा, इसको भी गुस्सा आएगा। मेरा जब नस्ल ही उनसे साबित नहीं, तो आप भले इनको ये अपने साथ रख रहे हैं, ये इनके साथ रह रहा है, लेकिन क्या बाप बेटे का रिश्ता हो जाएगा या बेटे बाप का रिश्ता हो जाएगा? नहीं। ये बच्चा जो है इनकी पूरी आदत को जानता है और ये इसकी पूरी आदत को जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जानने वाला है और ये भी जानने वाला है, लेकिन हम इन दोनों का रिश्ता आपस में नहीं जोड़ सकते। उसी तरह एक इंटेलेक्चुअल और एक इस्लामिक स्कॉलर इस्लाम के बारे में मालूमात तो बहुत रखता है, और हो सकता है कि वो एक आलिम से ज्यादा मालूमात रखे, हो सकता है वो एक आलिम से ज्यादा इस्लामिक चीजों पे सर्च करे, इस्लामिक चीजों को खंगाले, हो सकता है। बहुत मुमकिन है कोई एक आलिम को हरा दे इल्म
کے میدان میں, ایک اسلامک نالج کے میدان میں ہرا دے, لیکن وہ اپنی نسل جو ہے نا نبی سے ثابت نہیں کر سکتا. اور ایک کمزور عالم, ایک مریض ہے, سمجھو ایک مریض ہے, وہ اپنا باپ کا بتا سکتا ہے نا, بھلے یہ مضبوط ہے لیکن یہ رشتہ ان سے نہیں جوڑ سکتا, لیکن ان کا کمزور بچہ ہے لیکن وہ ان کا بیٹا ہے, وہ اس کو سینے سے لگائیں گے. بھلے یہ ان کا مضبوط کھلاڑی ہے لیکن وہ سینے سے کس کو لگائیں گے؟ کیوں؟ نسل ثابت ہے. اسی طرح اسلامک اسکالرس اور اسلامک انٹلیکچوئلس, اسلامک موٹیویشنل اسپیکرس بہت ہیں اور علماء سے زیادہ اچھا بولتے ہیں, لیکن ان کی نسل نبی سے ثابت نہیں. نسل انہی کی ثابت ہوگی جو نبی سے اپنے سلسلے کو جوڑ کر محنت کیا ہوگا, اس کو ہی اجازت حدیث کہتے ہیں, اسی کو سند کہتے ہیں, کہ اگر میں یہ حدیث بول رہا ہوں تو یہ میری حدیث کی سند نبی تک پہنچ رہی ہے, کہ میں نے ایک حدیث بولا آپ کے سامنے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بخاری کی آخری حدیث ہے. بخاری کی پہلی حدیث میں کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات. بخاری کی شروع سے لے کر آخر تک کی حدیث میں نے کہا, اور اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے حدیث کہاں سے سنی, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ٹرانسلیشن دیکھا یا میں نے کتاب پڑھی, اس کے ذریعے سے میں سیکھا. تو یہ نسل ثابت ہوئی کیا؟ نسل میں تو آپ کو باپ کا نام بتانا پڑے گا. تو نسل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ میں نے حدیث سنی ہے مولانا شرافت بستوی سے. انہوں نے کس سے سنی ہے؟ انہوں نے سنی ہے مولانا یونس جونپوری سے. انہوں نے کس سے سنی ہے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے کس سے سنی ہے؟ پھر وہ اوپر. انہوں نے کس سے سنی ہے؟ پھر وہ اوپر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. انہوں نے کس سے سنی ہے؟ دوسرے لوگوں سے. ایسا کرتے کرتے انہوں نے کس سے سنی ہے؟ امام بخاری سے. اور امام بخاری سے کس نے سنی ہے؟ امام بخاری نے کس سے سنا ہے؟ وہ ان کے استاد سے. ان کے استاد نے کس سے سنا ہے؟ ان کے استاد نے. اور ان کے استاد نے کس سے سنا ہے؟ حضرت علی یا حضرت ابو ہریرہ سے. اور حضرت ابو ہریرہ نے کس سے سنا ہے؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نسل ثابت ہوئی کیا نہیں؟ حالانکہ میں کمزور ہوں لیکن میں نسل ثابت کر لیا. تو یہ وارث ہے یا انٹلیکچوئل وارث رہے گا؟ ذہن میں بولو, کون وارث رہے گا؟ کون وارث رہے گا؟ چاہے میں کمزور ہوں لیکن وارث کا حقدار کون ہے؟ ایک عالم, یا عالم بھی نہیں, وہ آدمی جو اپنی حدیث کی سند بیان کر سکے کہ یہ بات میں نے کس سے سنی. تو یہی بولتے نا, اگر ان سے جڑ کے رہو گے تو ایک گمراہی سے بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ گے؟ گمراہی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تو گمراہی میں چلے گئے. اب آئیے قرآن کے اصل موضوع کی طرف. بات یہ کر رہا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. قرآن میں مشرکین مکہ جو ہے نا, یہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ مذاق اڑائے. اللہ کے نبی سے ہم کوئی ایسا کوشچن ریز کرے کہ اللہ کے نبی اس کا جواب نہ دے پائے اور ہم ہنسے, ٹھا کے مار کے ہم ہنسے. تو مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے. کیوں؟ یہودی اہل کتاب تھے. اہل کتاب بولے تو ان پر بھی کتاب اتری تھی, ان کے پاس بھی نبی آئے تھے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت سلیمان, حضرت داؤد, بڑے بڑے نبی آئے ان کے پاس. تو آؤ شانو صاحب, تو ان کے پاس تو بڑے بڑے نبی آئے, لیکن سب سے بڑے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے. بڑا تو نبی ہے کوئی, حضرت ابراہیم بھی بڑے نبی ہے, لیکن تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ. کوئی یہ کہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی نہیں, نعوذ باللہ, حضرت ابراہیم بڑے نبی ہے, تب بھی وہ نبوت کا انکار کر دیا اس اور اسلام سے نکل گئے. تو یہاں پر مشرکین مکہ جو ہے یہودیوں کے پاس گئے, بولے یہ بندہ جو ہے بہت ستا رہا ہے مکہ میں اور کثرت سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں, کچھ ایسا بتاؤ کہ ہم اس کو پرکھے کہ پکا نبی ہے یا کچا ہے, یا یہ جھوٹا نبی کا دعوے دار ہے. دیکھیے مشرکین مکہ کی یہ مینٹیلٹی تھی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈرشپ چاہیے. کیا چاہیے؟ صدارت چاہیے. اگر اس کو ہم بادشاہ بنا دیں گے بات ختم ہو جائے گی. یا تو اس کو بہت سارا مال چاہیے. انسان تین چیزوں کی وجہ سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. نمبر ایک, میں زیادہ کام کروں گا تو مجھے لوگ لیڈر بنا دیں گے, برابر ہے. نمبر دو, میں زیادہ کام کروں گا تو لوگ مجھے پیسہ دینے لگ جائیں گے. میں زیادہ کام کروں گا تو ایک لڑکی مجھ سے میرے پاس نکاح میں آ جائے گی, 1 2 3 یا 4, بولیں گے اچھا لڑکا ہے نکاح کرا دو. یہی بات ہے نا.
تو मुशरिकीन मक्का ने ये सोचा कि इसको तो सदारत चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी खुद सरदारों के घरों से थे, शायद इसको शायद पूरे मक्का की बादशाहत चाहिए, हो सकता है। तो इन लोगों ने बादशाहत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर किया कि अगर तुमको मक्के का सरदार बादशाह बनाना है तो हम बादशाह भी बना देंगे, बस ये हक के रास्ते से हट जाओ। अच्छा तुमको बादशाहत नहीं चाहिए, तुमको कितना माल चाहिए बताओ, हम तुमको माल देंगे। या तो ये कि तुम बस लड़कियों पे हाथ रखो, जिस लड़की पे हाथ रखोगे वो लड़की तुम्हारी। तो अल्लाह के नबी को ये रिश्वत देने की कोशिश की गई। पता क्या चला, जो हक के रास्ते में चलेगा लोग उसको खरीदने की कोशिश। क्या चाहिए बोल भाई, जितना माल चाहिए बोल, या तो ब्लैंक चेक देंगे उसमें हमारी सिग्नेचर रहेगी, अमाउंट तेरा। और कुछ लोग बिके भी, और कुछ लोगों ने बिकने से इनकार किया तो सलाखों के पीछे गए भी, शहीद भी हुए, या शहीद नहीं भी और सलाखों के पीछे भी नहीं गए तो इंसानियत ने उनको सच्चा अपना लीडर माना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने ये तीनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों ऑफर्स झुटला दिए। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक कहा कि तुम जमीन की हुकूमत देना चाहते हो, अगर तुम मेरे को चांद और सूरज की भी हुकूमत दे दोगे, एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज भी रख दोगे, तब भी मैं अपने बात से हटने वाला। हक इसी को कहते हैं। हक बात किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक आलिम हूं, या मैंने कोई मसला सादिर कर दिया, कोई मसला मैंने बता दिया, और कुछ पब्लिक आई कि ये मसला आपने ऐसा बताया जो हमारे खिलाफ है, कुछ पैसा लो और मसले को खत्म करो, और मैंने मसला चेंज कर दिया, तो आप हक से हट गए, आप हक पर नहीं थे, और आपने कहा कि मेरी जान ले लो लेकिन ये मसले को मैं हटाऊंगा नहीं, तो यही हक। तो अल्लाह के मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि अल्लाह के नबी तो बात मान नहीं रहे, तो कुछ अलग हीला अपनाया, कुछ सवालात करने चाहिए नबी से, कुछ देखेंगे कि पक्का नबी है या नहीं। यहूदियों के पास गए, यहूदियों ने कहा कि देखो 3 सवाल करो, तीनों भी कुरान ने सवाल के जवाब जिक्र किए हैं, 3 सवाल करो, 3 के तीनों जवाब दे दिए तो नबी नहीं, 3 के 3 सवाल के जवाब दिए तो वो नबी, और तीनों के जवाब नहीं दिए तब भी नबी नहीं। 2 के सवाल करो, 3 में से 2 के सवाल के जवाब देंगे और 1 का सवाल का जवाब नहीं देंगे तो समझ जाओ कि वो पक्का नबी है। कौन कह रहा है? यहूदी कह रहे। तो सोचो वो कितने ज्यादा नबी से वाकिफ थे, लेकिन उनकी हठधर्मी ने उनको जो है ना ईमान लाने पे मजबूर कर नहीं की, यानी ईमान लाने पे वो पीछे हट गए। जानते तो वो थे, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि यहूदी नबी को ऐसे जानते हैं ना जैसे वो अपने बाप को जानते, लेकिन फिर भी उनकी हठधर्मी ने उनको ईमान लाने से हटा दिया। तो वो मुशरिकीन मक्का है और अल्लाह के नबी से कहा कि देखो हमें आपसे कुछ सवालात करने हैं। अल्लाह के नबी से सबसे पहला सवाल यही किया, यसअलूनका अनिर रूह, वो आपसे रूह के मुताल्लिक पूछते हैं। फिर दूसरा सवाल असहाबे कहफ के बारे में किया, जो सूरह कहफ में कि जो गार वाले थे उनका मामला क्या हुआ। तीसरा सवाल ये कि यसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, वो ज़ुल्करनैन के बारे में आपसे पूछते कि ज़ुल्करनैन वाले आदमी का क्या किस्सा है। तो आपसे 3 सवाल किए, 3 में से आपने 2 सवाल का जवाब दिया। वो असहाबे कहफ के बारे में पूछते हैं, पूरा डिटेल है उधर, कितने थे, क्या नहीं थे, उनके साथ क्या मामला पेश आया, क्या नहीं हुआ। कहफ का किस्सा इंशाल्लाह ये सूरह बनी इसराइल के बाद असहाबे कहफ वो तो सीरीज चलेगी। उसके बाद उन्होंने यसअलूनका, वो ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, तो सूरह कहफ आप उठाकर देखो और ज़ुल्करनैन का ट्रांसलेशन पढ़ो तो पूरा आगे है कि ज़ुल्करनैन जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपने हाथों में कुदरत दे दी थी बहुत सारी, और वो निकलते थे एक जगह जहां पर हो गए जहां पर सूरज डूब रहा था, वहां की बस्ती को देखा कि वहां की बस्ती परेशान है, क्यों? याजूज माजूज लोग आते हैं, उनके साल का सारा सामान खाकर चले गए। तो ज़ुल्करनैन ने एक दीवार क्या कर दी, खड़ा कर दी। तो पूरी डिटेल में आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हिस्ट्री बता दी मक्का वालों के सामने। 2 सवाल के जवाब दे दिए। तीसरा सवाल का जवाब ये है यसअलूनका अनिर रूह, यहूदियों ने कहा क्या कहा था? 3 सवाल के जवाब में से कितने सवाल के जवाब देंगे और 1 का। अब आए यसअलूनका अनिर रूह, वो आपसे रूह के मुताल्लिक पूछते हैं। आप कह दीजिए रूह जो है मेरे रब का हुक्म है, रूह मेरे रब का हुक्म है। यहां पर रूह का लफ्ज आया। रूह किसे कहते हैं? देखिए रूह हम बोलते हैं ना इसकी रूह परवाज हो गई, क्या मतलब? इसकी आत्मा। लेकिन जो सिर्फ लफ्जी तौर पर कुरान को गौर करता है, या हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, इस जमाने में बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं
जो लफ्ज को पकड़ के ही फैसला करते हैं कि ये इतना है, हदीस में है या कुरान में बस लिखा हुआ है, बस इतना ही। लेकिन उसके नीचे क्या है, उसका मतलब क्या है, रूह का मतलब क्या है। रूह का मतलब कुरान भी हो सकता है, क्यों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को रूह भी कहा है। रूह का मतलब जिब्रील अमीन भी है। वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इन्ना अंज़लना में है। अल्लाह ने रूह से मुराद किसको लिया, अल्लाह ने रूह से मुराद किसको लिया, जिब्रील अमीन को, यानी फरिश्ते को। और रूह से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी है। हजरत जिब्रील ने मरियम के पेट में क्या फूकी, रूह, तो रूह से मुराद कौन है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। चौथा आत्मा, चौथा क्या है, आत्मा। आत्मा समझ रहे हो, रूह, तो चार मतलब है। अभी यहां पर कौन सा मतलब आप लोग है, और चारों के चारों मतलब खुद कुरान दे रहा है। यसअलूनका अनिर रूह, वो आपसे कुरान के मुतालिक पूछते हैं। अगर कोई ये भी तर्जमा करे तब भी वो गलत नहीं। और अगर मैं करूं, ये तो सामने तर्जमा, यहाँ तो तर्जमा नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका तर्जमा ऐसा करूं कि वो आपसे कुरान के मुतालिक पूछते हैं, तो ये मतलब भी गलत नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, उसका आगे और पीछे का हमको देखना पड़ेगा कि वाकई कुरान के मुतालिक सवाल पूछा जा रहा है या किसी और रूह के मुतालिक पूछा जा रहा है। वो आपसे फरिश्तों के मुतालिक पूछते हैं, वो आपसे ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछते हैं, या वो आपसे जिब्रील अमीन के मुतालिक पूछते हैं। क्यों, रूह के चारों मतलब। आप ट्रांसलेशन करके बता रहे हो ना, आपके पास अगर तर्जमा आ गया, ये लो तर्जमा, विदाउट तर्जमा मैं ये कहूं कि रूह के चार मतलब है, अब हमने तर्जमा पढ़ा नहीं, तो बताओ आप इसमें से चार में से कौन सा डिफाइन कर पाओगे। आपको यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, एक आलिम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर समझने की, ट्रांसलेशन की भी नहीं। यहाँ पे एक आलिम की जरूरत पड़ेगी कि भाई इस रूह से क्या मुराद है, ये चार लफ्ज में से। इसी तरह हम कुरान कुरान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान का मतलब क्या है, कभी किसी ने सोचने की कोशिश की कि कुरान का मतलब क्या है। चलो बताओ, कुरान का क्या मतलब है, अल्तमश। कुरान का ये हो गया, उसको डिफाइन कर रहा है कैसे जीना है। अच्छा, रूह का मतलब मैंने बताया, या तो फरिश्ता, या तो आत्मा, या तो ईसा, या तो कुरान। देखो शॉर्ट हुआ ना, मतलब वही चार। ऐसा कुरान का मतलब क्या है, आफ्ताब भाई, मोइन बोलो, अमान, आदिल। कुरान, कुरान बचपन से हम कुरान सुन रहे, कुरान का मतलब क्या है। हाँ, कोई कुछ बोला, बोलो। अच्छा, नॉलेज के लिए आता है, इल्म, कुरान, दीन पे चलना, वेरी गुड। और सोच के बताओ, कुरान का मतलब है, बोल लू मैं, कुरान का मतलब है पढ़ना। इसका अगर वर्ड का मतलब बताओ ना, इचिंग, इचिंग का मतलब क्या है, खुजली, है ना। सौरों का मतलब क्या है, गम, है ना। तो इसी तरह ये एक वर्ड में हुआ ना आंसर, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं, कुरान का मतलब क्या है, पढ़ना। लेकिन कुरान, ये तो हो गया कुरान, लेकिन ये लफ्ज, इसका रूट वर्ड क्या है। आप टेंस में पढ़े होंगे, सब पढ़े लिखे हैं आप। एक होता है वर्ड, एक होता है रूट वर्ड। एट का रूट वर्ड क्या है, ईट, है ना। हैप्पीनेस का रूट वर्ड क्या है, हैप्पी। तो इसी तरह इसका रूट वर्ड क्या है कुरान का, कुरान का रूट वर्ड है करउन। करउन क्या वर्ड है, करउन। और करउन का क्या मतलब है फिर, करउन का मतलब है जमा करना। करउन का क्या मतलब है, जमा करना। अब यहां सवाल पैदा होता है, क्या जमा करना। तो कुरान ने पिछले जितने तौरात, जबूर, इंजील, इन सब टॉपिक्स को जमा किया है अपने एक कुरान के अंदर। या तो सूरतों को कुरान ने जमा किया है, सारे सूरत जमे हुए हैं ना, मिले हुए हैं, या तो आयतों को जमा करना। तो इसकी तारीफ, इस पर बैटरी फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने कहा कि ये तारीफ अगर हम शुरू से लेंगे कि कुरान को जमा करना, तो कुरान की जब सूरह इकरा नाजिल हुई, उस वक्त आप इसको कुरान नहीं कह पाओगे। क्यों,
क्योंकि कुछ जमा ही नहीं हुआ था, सूरत जमा ही नहीं हुई थी। यहां पर क्या आ जाएगा? तो यहां पर उन्होंने कहा कि पढ़ना और कुरान जो है, फिर उन्होंने इसकी दलील दी। और फिर समझ रहे हो आप कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेचीदगियों में उलझाऊं। हम जिनको रील्स में देखते हैं, सुनते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट की रील में, और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसको बहुत कुछ मालूम, लेकिन हम जो कुरान सुन रहे हैं, आज तक हमको कुरान का मतलब ही नहीं मालूम हो पाया। कुरान का असल मतलब क्या है? कुरान का असल मतलब क्या है? पढ़ना। और उसका रूट वर्ड क्या है? करउन, जमा करना। अब क्या जमा करना? आदमी बोल सकता है कि भाई सूरह सारी जमी हुई है, इसलिए इसको क्या कहा गया? जमा करना, कुरान को जमा करना। तो जब आप रूट वर्ड समझे ही नहीं, तो आप इसकी तफसीर की गहराइयों तक कैसे जाओगे? और ये बगैर ट्रांसलेशन के आप सिर्फ अरबी समझ कर तो नहीं। आज हम ट्रांसलेशन करके फैसला करते कि यार कुरान ये बोल रहा है। क्यों? मैंने तो ट्रांसलेशन पढ़ा हूं ना। अब मैंने ट्रांसलेशन का भी चिंदी करके बताया आपको। रूह अगर कोई कहे कि वहां पर लिखा है ट्रांसलेशन कि वो आपसे रूह के मुतालिक, आत्मा के मुतालिक सवाल पूछते हैं, मैं कहूं कि नहीं, रूह का मतलब कुरान भी है, रूह का मतलब जिब्राइल भी है, रूह का मतलब ईसा भी है, मैं गलत हूं क्या? और मैं कुरान से दलील दे रहा हूं, फिर आप वो ट्रांसलेशन को क्या करो? यहां आप फंस गए। तो कुरान को समझने और कुरान को समझाने के लिए अरबिक ग्रामर का, अरबिक शेरो शायरी का, अरबी सारी चीजों का मालूम होना भी बहुत जरूरी है कि ये वर्ड निकला कहां से। और ये कैसे मालूम पड़ेगा? आपको वक्त देना पड़ेगा, 6 साल, 10 साल, 8 साल, तब तो आपको मालूम होगा ना। तो ये जो शुरू के उभरे हुए लोग हैं जो इस्लाम पर बड़े बड़े लेक्चर बाजी करते हैं, अभी आप जाओ उनसे खुद पूछो कुरान का मतलब क्या है, वो भी ऐसी ही तशरीह करेंगे। हाँ, देख लेना, आजमाओ मत किसी को। लेकिन ये कि हम जो है कुरान को पकड़ के चले और कुरान वालों को पकड़ के चले। अब यहाँ पे आओ, यस अलूनका अनिर रूह, वो आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं। ये रूह से कौन बता सकता है कि मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको? यहाँ पर मक्का वाले आपसे आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं कि ये आत्मा का क्या किस्सा है। और रूह वाकई में साइंसदान भी इस रूह की रिसर्च कर रहे हैं कि आदमी के अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो निकलने से आदमी तो है लेकिन बेजान है। मैं अच्छा खासा हूं लेकिन मरने के बाद भी मेरा बदन ऐसी रहेगा ना। लेकिन एक क्या चीज है कि वो रहेगी तो आदमी रहेगा, वो नहीं रहेगी तो आदमी मुर्दा हो जाएगा। इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं बाकायदा। जिसको सकरात आती है उसको लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें जो निकल रही है। देख, बारीक से बारीक कैमराज और एकदम हाई टेक्नोलॉजी की चीजें यूज हो रही है कि इस रूह को मालूम करने के लिए रूह की क्या हकीकत है। तो उन लोगों ने भी रूह की हकीकत को जानने की कोशिश की। किन्होंने? मुशरिकीन मक्का ने। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी से कहलवाया कि कुलिर रूह, आप कह दीजिए कि जो रूह है ना वो मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह जिस पर चाहता है रूह फूंक देता है, उसमें जान आ जाती है, जिससे चाहता है निकाल लेता है। अब यहाँ पे अल्लाह के नबी ने रूह की डेफिनेशन नहीं बताई कि देखो रूह ऐसी है, रूह वैसी है। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने साफ ला इल्मी का इजहार किया कि मुझे रूह के बारे में मालूम, और रूह के बारे में मालूम पड़ भी गया तो मेरे और तुम्हारे अमल में क्या कमी और बिजादती आएगी? तो पता क्या चला, इस्लाम में वो सवाल करने से मना किया गया जिसमें ना दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा। तो हम सवालात तो बहुत करते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि मेरा इसमें दीन का फायदा है या दुनिया का। जैसे आज हमारे वॉर्स चल रहे हैं, वॉर्स के मुतालिक हम सवालात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कभी हमारे जहन में आया कि इससे हमारे दीन का क्या फायदा है और दुनिया का क्या फायदा है? आया? फायदा है ही नहीं। आगे, वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, और तुमको तो बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि जितने लोग सबको, तुमको बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है, उसके बारे में बहुत कम नॉलेज है तुमको। रूह के बारे में समझ गया? अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि रूह के पीछे तुमको पढ़ के मतलब ही नहीं है, तो हम भी रूह के बारे में ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करेंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला अब अल्लाह के नबी से यहाँ कह रहे हैं, देखो अल्लाह के नबी से कह रहे हैं
वलइन शिअना, अगर हम चाहे तो वो सब कुछ तुमसे छीन ले जो हमने वही के जरिए आपको दिया है। अगर हम चाहे, ये अल्लाह ने अपने नबी से कहा, अगर हम चाहे तो हम आपसे सब कुछ छीन ले जो हमने आपको दिया है। कहने वाला कौन है, क्या किसको रहे? तो ये दोनों की गुफ्तगू है, हम इस पे अपने टांग नहीं अड़ाएंगे। अल्लाह के नबी सब तमाम इंसानों में, तमाम अंबिया में सबके सरदार, और अल्लाह तो सरदारों के सरदार बादशाह है, और बादशाह का सबसे बड़ा करीबी आदमी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस करीबी आदमी से कह रहे हैं कि अगर हम चाहे तो हम आपसे सब कुछ छीन ले जो हमने आपको दिया है। थोड़ा डांटने का अंदाज हुआ ना। यहाँ पे ये बात पता चलती है कि मुशरिकीन मक्का को ये बात बता रहे हैं कि अगर ये नबी का कलाम होता, जैसा कि मुशरिकीन दावा करते थे कि इसने तो अपना कलाम खुद से घड़ लिया है, तो घड़े हुए कलाम में तो अपनी तारीफ ही होगी, सिर्फ डांट डपट होगी क्या? इससे पहले भी पिछले दफा एक आयत आई थी, इधे वलौला अन सब्बतना का लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन कलीला इज़ल लअज़क़ना का ज़िअफ़ल हयाती व ज़िअफ़ल ममाती सुम्मा ला तजिदू लका अलैना नसीरा। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बात कही थी, और अगर हमने आपको हक पर जमाया ना होता और अगर आप डगमगाए होते ना, तो यहाँ पर देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बड़ी डांट लग रही है। यहाँ पर जरा तर्जमा करूंगा मैं, और उस वक्त मैंने कहा था कि नबी के जरिए हमको डांट दी गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह क्या कह रहे हैं? फिर हम आपको जिंदगी और मौत दोनों का डबल अजाब चखाएंगे। किसको बोल रहे? किसको बोल रहे? और कौन बोल रहा? अगर आप वो मुशरिकीन की तरफ माइल हो रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तरफ माइल हो रहे हैं, वो याद होगा अगर आप लोग, मैंने कहा था कि अल्लाह नबी के जरिए हमें डांट दे रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ाब्ता यहाँ पर आपका लफ्ज है क, यहाँ पर आप यहाँ पे क बता रहा है, क एक लफ्ज अरबी का लफ्ज है, क बोले तो यू। यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि फिर हम आपको जिंदगी और मौत दोनों का दोहरा अजाब चखाते, फिर उसके बाद आप हमारे मुकाबले में अपना कोई मददगार न पाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट दे रहे। अगर मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने ये कलाम खुद से घड़ा है, तो यहाँ पर सिर्फ नबी की क्या होती? तारीफ होती। यहां से उन लोगों को ये सबक लेना चाहिए जो अपने आप को ये दीन के ठेकेदार और दावेदार कहते हैं कि हमें कोई कुछ बोल नहीं, हमें कोई अपने काम पे टोक, हम ही एक सीधे रास्ते पे हैं, बाकी सब जलालत और गुमराही के रास्ते पे हैं, तो ये कहना ही उस आदमी का जलालत और गुमराही। और ये कोई कहे कि हमें कोई नहीं कह सकता, हम तो भाई नबी के क्या बोलते हो, नबी के खानदान में से हैं, या हम अहले बैत में से हैं, या तो हम वारिसीन अंबिया हैं, या तो हम उलमा हैं, हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता, हम तो बहुत बड़े सरदार हैं। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं नबी को, क्या कह रहे हैं? अगर हम चाहे तो आपसे वो सारी कुछ छीन ले जो हमने आपको दिया है। यहाँ से बात पता चली कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट रहे हैं इसलिए कि आने वाली उम्मत को पता चले कि भाई अगर ये कलाम नबी का होता तो नबी को डांट नहीं पड़ती। और उसके बाद आने वाले लोगों को अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो लोग ये जहन में बिठा लेते हैं ना कि भाई हमको तो कोई हमारे काम में टोक नहीं सकता, हमको कोई बोल नहीं सकता, हमको ये नहीं कर सकता, हम एकदम सही है, तो यहाँ पर अल्लाह ने उनको भी डांट लगा। अगर हम फिर अल्लाह ने आगे फरमाया सुम्मा ला तजिदू लका बिही अलैना वकीला, फिर आप उसके लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार सपोर्टर ना पाते। वहां पीछे क्या कहा? मददगार ना पाते। यहाँ पर क्या कह रहे? फिर आप हमसे अगर हम आपसे सब कुछ छीन भी लेना तो आपका कोई सपोर्ट में आके हमसे बात भी, नबी सबके सपोर्टर है, नबी के सपोर्टर में कौन आके बात करेगा? ये आयत जो है ना, जब भी मैं वो आयत और ये आयत पढ़ता हूं तो इसका तर्जमा करने से गुरेज करता हूं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, भले अल्लाह का कलाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी जुर्रत नहीं है कि हम उस तर्जमे को अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करें कि अल्लाह जो है नबी को बोल रहे हैं। हम ये कहेंगे कि अल्लाह हमको कह रहे हैं नबी के जरिए, अल्लाह हमको कह रहे हैं इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, मगर ये सिर्फ आपके रब की रहमत है। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि आपके रब की रहमत है इसलिए आपसे कुछ छीना नहीं गया। इन नफज़लहु काना अलैका कबीरा, बेशक आपके ऊपर उसका बड़ा फजल है, बड़ा इनाम है। अल्लाह फिर यहाँ पे अपने नबी को
अंदर मीठी बात करके ले भी लिए। देखो छीनना चाहते तो हम छीन लेते, लेकिन तुम हमारे अपने हो तो बहुत बड़ा फजल हमने तुम पे किया है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुमको सारे जहां का क्या बना के भेजा है, रहमत, रहम दिल बना के भेजा है। तो वो तो मैं इसलिए तुमको कह रहा हूँ कि सामने वाला सुन ले। हम कभी कभार अपने वाले को डांटते हैं, ए पैसा भी दे दे वरना मार दूंगा तेरे को, तू बहुत कंजूसी गिरी कर रहा है। सामने वाले से कर्जा अपने को लेना है, उसको नहीं, इसको बोल रहे क्यों, कि बुरा नहीं मानेगा और समझने वाला कि मेरे को बोल रहा है सर। ये कितना कंजूस है यार, कभी तो चाय पिला। इतनी बार अपन साथ में निकलते, साला कभी पिलाता ही नहीं। अब वो समझ रहा है कि मेरे को बोल, उसको बोलेंगे वो बुरा मान जाएगा, है मेरे को बोल दिया अल्लाह ने डायरेक्ट। तो अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं, ये भी मोहब्बत का अंदाज है कि अपने यार से ऐसी बात करो कि यार बुरा भी ना माने। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेन में हम गाली भी दें कि मेरा दो भाई बुरा नहीं मानता। अब आगे यहाँ देखो कि बेशक आपके ऊपर आपके रब की रहमत है और आप पर तो बड़ा अपने रब का क्या है, इनाम है। यहाँ पे कितना मीठा जुमला लग रहा है, यानी पता क्या चला, पीछे अल्लाह उनको बता रहे थे कि देखो आप पर वही के जरिए हमने आपको सब कुछ निछावर किया है। हो सकता है हम इतने ताकतवर हैं कि आपसे वो सारी चीजें ले ले। फिर अल्लाह ने फरमाया, कुल लइन इज्तमाअतिल इंस वल जिन्नु, के इंसान और जिन्नात से कह दीजिए, अब यहाँ पर चैलेंज हो रहा है, कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात जमा हो जाए कि वो इस जैसा कुरान बना ले, तब भी वो इसके जैसा ना ला सकेंगे। किसके जैसा? कुरान के जैसा। इस कुरान में हर किस्म का मजमून तरह तरह से बयान किया है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कुरान में हर तरह के टॉपिक बयान किया गया है। फिर भी अक्सर लोग इनकार ही पर जमे हुए हैं। फिर भी अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, इस कुरान का इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर इंसान और जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा करके चैलेंज किया। मुशरिकीन मक्का अरबी थे, आसान था कुरान बना ले, और मुशरिकीन मक्का ने कोशिश की और कुछ आयतें बनाकर नबी के पास लेके गए, बोले हमने तो कुरान की आयतें बना ली। अब अल्लाह के नबी ने पूछा बताओ जरा क्या बनाए, तो एक जन पढ़ रहा है अलफील मलफील वमा अदराका मलफील, है ना कुरान की आयत, वो अमान हाँ बोल रहा है। अलफिल मलफिल है कुरान में, क्या है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका। हाँ, और अरब वालों ने क्या बनाई थी, अलफील मलफील वमा अदराका मलफील खुरतुन तवील। अब यहाँ पे सुनो क्या मतलब, कि अलफिल हाथी, और तुम क्या जानो हाथी क्या है। वहां पे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका भी है, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के झुंड के साथ, उसकी मिलिट्री के साथ क्या किया। यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा चेंज किया, हाथी, और तुम क्या जानो हाथी क्या है, वमा अदराका मलफिल, और तुम क्या जानो हाथी क्या है, उसकी सूंड तो लंबी है और जिस्म मोटा है। तो उन्होंने कुरान की आयत नहीं, ये तो पोइट्री बना दी उन्होंने, ये तो क्या बना दी। तो कुरान के ऊपर उन लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन एक आयत भी कुरान के मुकाबले में पेश नहीं कर सकी। पता क्या चला, कयामत तक के जमाने में, कयामत तक के जमाने तक कुरान मौजज़ा है अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। क्या है? कुरान। और मौजज़ा किसको कहते हैं? मौजज़ा उसको कहते हैं कि इंसान के हाथों से ऐसी चीजों का सादिर होना जो इंसान के बस में ना हो। या तो वो मौजज़ा होगा, या तो वो मोमिन होगा, या गैर मोमिन होगा। मोमिन हुआ तो नबी, नबी के हाथों से निकले तो वो मौजज़ा, और किसी वली के हाथ से निकले तो करामत। और गैर नबी और गैर वली यानी गैर मोमिन, ईमान वाला नहीं, तो उसके हाथों से हो तो वो जादू है और इस्तदराज है, और जादू हराम है, और जादू शैतान की तरफ से, करामत अल्लाह की तरफ से। और सबसे बड़ी नबी का मौजज़ा क्या है? कुरान। हजरत ईसा को क्या मौजज़ा था? हजरत ईसा को मौजज़ा था डॉक्टरी का, डॉक्टर थे बहुत बड़े। और अब भी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे इस जमाने में, तो सबसे बड़े डॉक्टर वही हो। बहुत लेट आते हैं इन लोग, पूरा खत्म होने के बाद। चलो ठीक है, वो कोई और जाफर होगा, जाफर भाई। तो यहां पर मैं बता रहा था कि कुरान अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अगर अल्लाह के नबी कोई मौजज़ा दिखाते भी नहीं, बस कुरान उतारते, कुरान ही तो काफी था ये मौजज़ा। ये मौजज़ा क्यों है? मैं ये कह रहा था कि हजरत ईसा जब आखिरी जमाने में भी आएंगे तो सबसे बड़े डॉक्टर वही होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे दज्जाल के सामने जो है
जिंदे को मुर्दा कर देगा, मुर्दे को जिंदा कर देगा। तो उसके सामने भी तो ऐसा कोई होना चाहिए, तो जिंदे को मुर्दा कर दे मुर्दे को, तो वो कौन कर सकेगा? हजरत ईसा करेगा। और हजरत ईसा जिसको देख लेंगे, अगर वो कोढ़ का मरीज होगा तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। कोढ़ जिसका कोई इलाज ही नहीं, अंधा जो पैदाइशी अंधा, उसका कोई इलाज है क्या? हजरत ईसा हाथ फेर देंगे। तो सबसे बड़ी डॉक्टरी किसके पास थी? ईसा। क्यों? उस जमाने में, हजरत ईसा के जमाने में मेडिकल बहुत आगे तरक्की कर रहा था। तो हजरत ईसा को क्या मौजज़ा दिया गया? डॉक्टरी का। हजरत ईसा को हजरत ईसा को, हाँ, और हजरत मूसा को, हजरत मूसा के जमाने में बड़े बड़े जादूगर थे, बहुत बड़े बड़े जादूगर थे। तो हजरत मूसा को क्या मौजज़ा दिया गया? जादू नहीं, करामत। लकड़ी आपके हाथ में थी, वो लकड़ी कभी सांप बन जाती है ना, कभी तो वो ऐसा बनती कि रास्ता बना लेती, और आपको कुव्वते बैजा, यानी आप हाथ बगल में हाथ डालते तो रोशन हो जाता आपका हाथ क्या होता? रोशन हो जाता। तो ये कब हुआ? जब सामने। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ये दिया गया ना डॉक्टरी दी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कभी किसी ने सोचा? ये दोनों चीजों से हटके उस जमाने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और अब तक भी लिटरेचर एक हाई पोजीशन पर है। लिटरेचर स्टेज पे उसी को बुलाया जाता है जिसकी जबान अदब वाली हो। बड़े बड़े नोबेल प्राइज उसको दिए जाते हैं जिसकी जबान, गाने वो मशहूर होते हैं जो गाने मीनिंगफुल हो। भले आजकल टपोरी गाने फेमस होते हैं, वो रील के हिसाब से होते हैं, एक हफ्ते तक रहेंगे, लेकिन जो असल गाने जिसको 50, 60, 80 साल भी हो गए, आज भी वो ट्रेंडिंग में। क्यों? उसके अंदर वो अदब की चाशनी है, शेरो शायरी। उस जमाने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लिटरेचर एकदम हाई लेवल का था। तो उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, पढ़ना लिखना भी आपको नहीं आता था, और आपके जबान से ऐसे ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जिसके मतलब हजारों में निकलते हैं। जैसे कि आज का जो है यसअलूनका अनिर रूह, वो आपसे रूह के मुतालिक पूछते हैं। रूह का क्या मतलब है? रूह का मतलब आत्मा। वो आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं, या तो फरिश्तों के बारे में पूछ रहे हैं, या तो हजरत ईसा के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जो है वो इतने बेखबर हैं कि हम बस वो तर्जमा देख लेते हैं, तर्जमे से हम ये बोल देते हैं कि भाई तर्जमे में है, मैं तर्जमा पढ़ा। तो क्या तर्जमा सारा का सारा सही है? अगर मैं रूह के जगह पर, अगर मैं तर्जमे की आपको एक किताब दे दूं कि वो लोग कुरान के बारे में आपसे पूछते हैं, और आप डिक्शनरी खोलो, वाकई में आप डिक्शनरी खोलो, रूह का मतलब वहां पर कुरान मिलेगा, तो लिखने वाले ने तो गलत तर्जमा नहीं लिखा, और डिक्शनरी में भी गलत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा वो गलत है। मेरी ये दलील होगी कि उसका आगे और पीछे का पैराग्राफ वो कुरान के मुतालिक नहीं है। रूह का और एक मतलब आता है जिसको हम कहते हैं आत्मा, और वो आत्मा के बारे में ही सवाल कर रहे हैं, कुरान के मुतालिक सवाल करते तो पूरा कुरान उसका जवाब है। तो यहां पर आज जितने भी आप रील्स स्क्रॉल करो या यूट्यूब में आप जितने लोगों को सुन रहे हैं, वो आलिम नहीं है, और अगर आलिम भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आप इस्तेफादा करो। लेकिन हम अक्सर उन लोगों को सुनते हैं जो आलिम नहीं है, वो रिसेंट टॉपिक पर हदीस को बड़े अच्छे से बताते हैं और हवाला ये देते हैं बुखारी का, और वो खुद बुखारी को ट्रांसलेशन से समझते हैं। किससे समझते हैं? ट्रांसलेशन से। तो क्या ट्रांसलेशन से समझना काफी है? आज मैं आपको बरकत के लिए जो है असली बुखारी लाया हूं दिखाने के लिए। ये बुखारी का पहला पार्ट है, और अभी बुखारी का पहला पार्ट मैं खोल रहा हूं ना, इसमें आपको ये देखो, कुछ समझ रहा है क्या? समझ रहा है कुछ? लो देखो जिसको देखना है। अब यहाँ पे जबरदस्त पेश है क्या? नहीं है। और यहाँ पे अब इसको तर्जमा करो। अब जो आपका इंटेलेक्चुअल है उसको ये लेकर जाओ और को भाई इसका ट्रांसलेशन करके दे, करेगा? यहाँ पे ये बाब है गजवा उशैरा या उसेरा के बारे में। इब्न इसहाक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला गजवा अबवा का किया, फिर बुवात का, फिर उशैरा। फिर यहाँ पे पूरी सनद जिक्र की गई है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया। फकील लहू
ہم نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے؟ کہا کہ 29 غزوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. کتنے؟ 19. کتنے؟ تو یہاں پر کوئی ٹرانسلیشن ہے؟ اب بخاری کا لوگ حوالہ دیتے ہیں تو بخاری کا اصل نام بخاری بھی نہیں ہے. بخاری کا اصل نام بخاری نہیں ہے. بخاری کی کتاب کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ. بخاری کی اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ یاد ہوا؟ الجامع. یہ دکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ دیکھو میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو انٹلیکچوئل کو ہم روزانہ سن رہے ہیں اپنے انسٹاگرام پر ریلز پر اور تھوڑا پوز کر کے سنتے ہیں دیکھتے کیا بول رہا ہے, اس کی بات کی اہمیت آئی کیسے سکتی ہے جب اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. اب جب اس کے اندر کچھ ہے نہیں, وہ ظاہری طور پر آپ کو بتا رہا ہے, تو کیا وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر پائے گا؟ صحیح ڈائریکشن دے پائے گا آپ کو؟ حدیث ہم ٹرانسلیشن دیکھ کے بول رہے ہیں. جو ٹرانسلیشن دیکھ کر حدیث پڑھ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ارے بھائی تو کیسا کہہ رہا ہے؟ مفہوم سمجھ کے, تو اردو کا مفہوم سمجھ کے یہ صلاحیت تیرے اندر آ گئی کہ تو حدیث سمجھائے. حدیث کا ایک مطلب نہیں ہوتا ہے, بہت مطلب. حدیث کا کیا مطلب ہے؟ چلو قرآن کا ہم نے مطلب دیکھا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے جعفر بھائی؟ قرآن کا مطلب حافظ صاحب اب یہ بچوں سے ہو گیا. قرآن کا مطلب کیا تھا بتاؤ ذرا ان لوگ کو. پڑھنا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کرون. کیا مطلب؟ جمع کرنا. اسی طرح حدیث کا مطلب بتاؤ. ہاں بولو کچھ بولے آپ. بانٹنا. آپ یہ جمع کرنا. آپ سبحان بھائی کیا بولتے ہیں؟ حدیث کا مطلب ہم سن رہے ہیں, بچپن سے حدیث سن رہے ہیں, قرآن سن رہے. اصل مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا بولتے ہیں نور؟ سیکھنا. بولو آپ موہن. حدیث کا اصل مطلب ہے بات کرنا. حدیث کا اصل مطلب کیا ہے؟ بات کرنا. لیکن اس کا ایک ٹرم ہوتا ہے نا, سائنس میں بھی اپنے الگ الگ سائنٹیفک ٹرمز ہوتے ہیں. جیسے واٹر کو کیا بولتے ہیں؟ H2O, ہائیڈروجن پلس آکسیجن. اور ہائیڈروکسائڈ کس کو بولتے ہیں؟ ہائیڈروکسائڈ بولتے ہیں نا. تو اسی طرح حدیث کا اس ٹرم میں ہے کہ اللہ کے ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو, قول, فعل, تقریر, اس کو حدیث کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو, چاہے وہ قول کے ذریعے ہو یا کام کے ذریعے جو اللہ کے نبی نے کیا, یا تو تقریر بولے تو دو آدمی نے کیا اور آپ نے وہ کام دیکھا لیکن آپ نے نہ منع کیا اور آپ کو کام وہ بتایا گیا کہ ہم نے یہ کام کیا اور آپ نے اس پہ خاموشی ظاہر کی, تو وہ بھی ایک حجت بن گئی کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں حدیث. تو قرآن کو ہم سیدھا ٹرانسلیشن, چلو ٹرانسلیشن لیتے ہیں. ٹرانسلیشن بھی آپ کو یہ سوچنا پڑے گا میں کس کا ٹرانسلیشن لوں, کون ہے جو مجھے صحیح راستہ دکھائے. ایسا نہیں کہ اس کے حدیث کے زمرے میں یا قرآن کے الگ ٹرانسلیشن سے مجھے الگ راستہ دکھا دے. تو اصل چیز تو عربی آپ کو سیکھنی پڑے گی. پہلے تو ہم کو قرآن ہی پڑھنے کو نہیں آتا ہے. قرآن پڑھیں گے کب التمش؟ زندگی ختم ہو رہی ہے, واحد کی زندگی بھی ختم ہو رہی ہے. قرآن سچی ہم کو پڑھنے آ رہا نہیں ہے, تو کوئی ترتیب بناؤ قرآن پڑھنے کی بھی. اور ایک کتاب لایا تھا آپ کو دکھانے, یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے. یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے جلالین. ایسی تو بہت سینکڑوں تفسیر کی کتابیں ہیں. یہ بھی بغیر اعراب والی ہے اور یہ اردو کے ترجمے والی نہیں ہے, اس کا عربی ترجمہ ہے. تو میرا بتانے کا مقصد ہے جس کو ہم سن رہے ہیں وہ اتنے پیچھو خم سے واقف ہے کیا, اتنی باریکیوں سے واقف ہے کیا, پھر اس کو ہم اپنا رہنما لیڈر بنا کیسے رہیں جبکہ وہ اندر سے پورا خالی اور کوڑا ہے. یہ پیر صاحب, یہ مرید صاحب, یہ بڑے صاحب, یہ چھوٹے صاحب, یہ امیر صاحب اور یہ غریب صاحب. صاحب بات. پھر بنا کیسے رہے ہم جبکہ اتنی پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہے, تو ہمارے مسائل کیسے سالو کریں گا قرآن کے ذریعے سے؟ معاذ بھائی غلط بول رہا ہوں کیا؟ ہم اس کو اپنا بڑا مان رہے ہیں لیکن قرآن کے اس مطلب سے وہ واقف نہیں ہے, تو ہماری زندگی اور حیات زندگی کے مطلب سے کیسے واقف ہوگا؟ پھر اس کو کیا حق ہے ایمان کے بارے میں بولنے؟ ایمان کی شروعاتی قرآن سے ہوتی ہے. ایمان کی شروعاتی کہ قرآن کو ہٹ کے ایمان کی بات کرے تو چلے گا؟ کہ قرآن کو ہٹ کے اپنے پیر صاحب کی بات کرے چلے گا؟ کوئی قرآن کو ہٹ کے اہل بیت کی بات کرے چلے گا؟
बोले नहीं, अहले बैत की बात मुकद्दम है, कुरान की बात मुकद्दम नहीं है क्या? ये इसकी बात, ये साहब की बात मुकद्दम है, ये बड़े हजरत की बात मुकद्दम है, तो कुरान की बात कौन करेगा फिर? समझ में आ रहे हैं? तो आज जो मेरे बोलने का मतलब था रिसेंट टॉपिक पे नहीं था, आज जो मतलब आया वो यसअलूनका अनिर रूह, वो आपसे रूह के मुताल्लिक पूछते हैं लफ्जी तौर पर, और आज हम इस लफ्ज के चक्कर में बहुत फंस चुके हैं। एक तो हम बेजा सवालात करते हैं, और सवालात जिससे करना है उससे बेजा सवालात करते, आलिम लोग से बेजा सवालात करते, ऐसे सवाल जिसका ना सर है ना पैर। लेकिन जिनसे हमको बेजा सवाल करने चाहिए उनसे हम अपनी जिंदगी और जिंदगी के इंपॉर्टेंस वाले सवाल करते हैं। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हर हदीस का वारिस है, हर हदीस का वारिस है, और वो वारिस सिर्फ उलमा है। बाकी सब मैंने बताया ना, इंटेलेक्चुअल तो हो सकते हैं, लेकिन वारिस कहने का उनको कोई हक नहीं। ये इन लोग आए तो इन लोग को समझा होगा पीछे से, समझे ना कुछ तो बात। तो यही आज बात का मकसद था। चाचा बात समझ में आई? आज थोड़ा इसी लेक्चर वाली बात हुई, इसमें कुछ मतलब थे, मफाहिम थे, रूह का मतलब हमने समझा। उसके बाद ये कि कुरान को पूरे इंसान जमा नहीं कर सकते, इंसान जमा जिन्नात जमा नहीं कर सकते। कुरान एक मौजज़ा है, और वो मौजज़ा की उसकी हमने बात बताई, फिर हमने कुरान का मतलब समझा और हदीस का मतलब समझा। अब आगे वो काफिर जो है, आगे आयतें आ रही है कि काफिर अल्लाह के नबी से वही सवाल करेंगे कि जब ऐसा है तो हम पर कोई बारिश बरसा दो, अजाब ला दो। काफिरों को बहुत उंगली रहती है, काफिर बोलते हैं मुशरिकों को और यहूदियों को बहुत कीड़े काटते हैं। ये अब से नहीं, पहले से यहूदियों को कीड़े काटते थे। यहूदी शांति से अल्लाह के नबी से समझौता किए, शांति से किए। जब मक्का वाले यहूदी, मक्का वाले मुशरिकीन जब नबी पे चढ़ आए ना, तो वहां से उन लोगों ने भी गद्दारी कर दी, वहां से उन लोगों ने भी गद्दारी की। अल्लाह के नबी ने कहा कि अरे तुमसे तो हमारा पीसफुली सीज फायर हो गया था, देन आप क्यों आप हम पर हमला कर रहे हो? यही मतलब हुआ ना। बोले नहीं, अभी हमको कीड़ा काटा। क्यों? हमारे भाई जो है, जो मुशरिक है, वो आपके ऊपर चढ़ आए हैं। लेकिन अल्लाह ने दोनों को मुंह की खिलाया। और इस वक्त आज हम इसी सिचुएशन में हैं, एक तरफ मुशरिकीन है और एक तरफ यहूदी है, और बीच में हम एक तरफ से किसी से सीज फायर का समझौता करते भी हैं, दूसरा चढ़कर आ जाता है तो हम बीच में फंस जाते हैं। रहनुमाई की जरूरत है कि अब इस वक्त क्या किया जाए, और ये रहनुमाई आगे की आयत बता रही है। आगे की तो थोड़ा बहुत वो भी होना चाहिए ना कि आगे का जो मैं एपिसोड है उसकी थोड़ी क्या बोलते हैं, सस्पेंस। हाँ, कि उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह सीज फायर किए। आज के वक्त में लोग कि जब मैंने एक जगह सीज फायर किया और एक जगह कह रहा है कि मैं हमला नहीं करूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन, कि सबसे ज्यादा ईमान वालों से कौन बुग़्ज़ रखता है पता है? मुशरिकीन, जो बुत वाले हैं, और यहूदी। कुरान की बात झूठी। आज आप सर्वे करो, क्रिश्चियनिटी पूरा यूरोप खामोश है, दो ही लोग दंदना रहे हैं। एक तो याजूज माजूज की कौम जो अमेरिकन है, वाकई में वो याजूज माजूज की कौम है। आपको झूठ लग रहा होगा, सूरह कहफ की तफसीर में ये बात आएगी इंशाल्लाह, वो कैसे याजूज माजूज की कौम है उनको। और यूरोपियंस तो खामोश है, यूरोपियंस अक्सर क्या है, क्रिश्चियंस है। और एक तरफ कौन दंदर आ रहा है? हाँ? यहूदी तो दंदर आ रहा है वहां पर, एक तरफ दूसरी तरफ कौन दंदर आ रहा है? मुशरिक लोग जो बुत परस्त हैं। ये दो लोग ये चाह रहे हैं कि इनका खात्मा हो जाए। किसका? ईमान वालों का सिरे से कया हो जाए। तो ये इंशाल्लाह अगली बार बात होगी। कुरान ही की आयत आगे आ रही है जो हमको इसकी रहनुमाई करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खाना है